All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Meet. Hi, Rishabh. Good morning, Agam. Hi, Tanish. Hi, Tasu. Good morning. Acha, quick feedback. Are you guys getting a lot of background disturbance while I'm talking? So I'll stay quiet for a minute or so. थोड़ा बहुत आ रहा है. Okay. And while I'm talking, is it something that fades in the background, or is it something which is dominating? While I'm talking, okay. ठीक है, ठीक है. हाँ नहीं, बैकग्राउंड में वो किचन की आवाज़ थोड़ी बहुत तो आएगी ही सही है. दैट इज समथिंग व्हिच स्पेशली अभी तो पता नहीं कोई बर्तन अरेंज कर रहा है इधर उधर, तो दैट पे थोड़ा नॉइज रहेगा. ऑलराइट. चलो ठीक है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. We started discussing analyzing chemical reactions, and one of the first thing that I taught you was understanding of a balanced reaction, and if required balancing a reaction in terms of variables. ठीक है, नॉट जस्ट नंबर्स का आप लोगों को इनफ प्रैक्टिस ऑलरेडी है, बट आई वांटेड यू टू आल्सो प्रैक्टिस बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. अच्छा, आफ्टर दैट अब यहाँ पे आप नोटिस करना, आई विल बी starting off with certain examples, certain questions where you have to write a balanced reaction and establish a relationship between reactants and products. Right? That is the fundamental analysis. That is the fundamental discussion that we would do. Now, as part of that discussion, जनरली जो आपके सामने डेटा आएगा, कभी मास के टर्म्स में आएगा, कभी मोल्स के टर्म्स में आएगा, कभी वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा. ठीक है, मल्टीपल तरीके के फॉर्म में आपके सामने वो डेटा प्रेजेंट किया जाएगा. And what I have seen in many textbooks, even in booklet also, I have seen that there is a section called as mass analysis. Then there is a section called as mass mole analysis. अगर gases involved होंगी तो ऐसे mass volume या volume mole analysis, ऐसे multiple नाम दे देंगे. Now I don't want you to actually adopt any of those. I don't want you to differentiate between these different ways of analyzing a reaction. एक reaction का analysis करना है हमें आगे. All you have to do is do mole analysis. ठीक है, you need to actually just understand how I can relate reactants, products through their coefficients, and then do mole analysis. अब वो मोल एनालिसिस करने के लिए आपको जो डेटा दिया जाएगा उसमें यू विल हैव टू लाइक डू सम इंटर कन्वर्जन. लाइक अगर मास का डेटा दिया है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स का डेटा है तो एनालिसिस कर देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इस तरीके से आपको एक आदत डालनी चाहिए विच विल बी मच बेटर. इट विल हेल्प अवॉइड अ लॉट ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स ऑल्सो. सो लेट्स लुक एट दिस वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सामने. आई हैव आस्क्ड यू दैट कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट अप करेंगे 40 grams calcium carbonate को, तो how much CO2 in terms of volume in liters and NTP would be liberated. So अब किस तरीके से आपको यहाँ पे proceed करना है? The first thing that you have to do is write the balanced reaction. So calcium carbonate when heated up
ठीक है, it gives calcium oxide plus CO2. ठीक है, sometimes certain very easy, very basic reactions might not be given in question. ठीक है, they are something that are expected कि इतना तो basic आता होगा. This is one of those equations. ठीक है, that calcium carbonate को heat up करने से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है. अब यहाँ पर ये 40 ग्राम्स दिया हुआ है एंड पूछा जा रहा है that how much CO2 would be liberated in liters, right? अब I don't want you to do any mass volume relationship. ठीक है, I want you to do simply analyze moles के टर्म्स में. ठीक है, सो यहाँ पर 40 ग्राम्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हो जाएंगे? 40 डिवाइड 40 moles. molecular weight, so it will be 40 डिवाइड बाय 100. है ना, राइट? ये क्लियरली समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So 40 डिवाइड बाय 100, ये मोल्स हो जाएंगे आपके. अब I would want you to compute the moles of CO2 that will be produced. वो हम कैसे करेंगे? By looking at the coefficients. 1:1. एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से एक मोल CO2 बन रहा है. ठीक है, as per the coefficients, है ना? This is as per the coefficient. So 0.4 मोल से कितना मोल CO2 बनेगा? 0.4. 0.4. Understand 0.4 moles. Now I would like you to do the interconversion. What will be the volume of 0.4 moles of a gas at NTP? So you will multiply that 22.7. 2.4 को multiply. and report as the answer. Okay. This is how you are supposed to develop a habit of doing analysis in reactions. In most of the questions that we are going to come across, मैं आपको मोल analysis ही करने के लिए आदत डालने के लिए बोलूँगा. Some questions going forward, especially gases के reaction में, I would say कि direct volume analysis भी कर सकते हैं. ठीक है, but that is something which will come with time. जब मैं gases के बीच में analysis करने के लिए आपको बोलूँगा, तब direct volume analysis भी easy रहेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, मेन ये Yes. कॉन्सेप्ट है दैट प्रैक्टिस मोल एनालिसिस. ओके, सो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं ऑन दिस लाइन एंड धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, मैं अब क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको यू नो कॉन्सेप्ट्स या थियोरी सिखाऊंगा. अब अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो ये मोल कंसेप्ट की थ्योरी खत्म हो गई है. लाइक दिस इज इट. इससे ज्यादा थोड़ी बहुत थ्योरी और होगी जो कि विद टाइम में आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट दिस इज. क्या था? टहलने में टाइम लग गया आधा घंटा. अब जितना भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा वो सारी लर्निंग्स क्वेश्चंस के थ्रू आने वाली है. नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, चैप्टर में और भी चीजें हैं. ठीक है, बट वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता रहूंगा आपके साथ. फॉर एग्जाम्पल अभी आई विल बी डूइंग जस्ट अ सिंगल रिएक्शन विद यू, फिर उसके बाद में रादर देन अ सिंगल रिएक्शन आई माइट डू मल्टीपल रिएक्शंस इन अ गो, एक के बाद एक सीरीज रिएक्शंस बोलेंगे उसको, या फिर पैरेलल रिएक्शंस एक साथ करा दूंगा. दो रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं, पैरेलली हो रहे हैं, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इंट्रोड्यूस करूंगा. सो धीरे धीरे करके आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग newer concepts, but most of them will be through questions only, right? So a lot of learning is now going to come from questions. So questions अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना, take a genuine attempt at the questions while we are discussing. ठीक है, and also अगर क्लास में you are not able to get the answers of these questions by yourself in the first attempt, that's completely okay. You would need that second attempt, so take that attempt and make sure that you are understanding. ठीक है, Sir, बोलो बोलो. sir, what if a reaction comes, means which we don't know, sir, means the above reaction was an easier one, but if they give a complex. रिएक्शंस मिलेंगे ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन का रिएक्शन मैं आपको दे दूंगा अभी. Okay, sir.
ये वाला क्वेश्चन लिखते जाओ। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन मैंने आपको दे दिया है। एंड एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, 40 व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज? 25 25. ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के हिसाब से आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि जो डी ब्लॉक के फर्स्ट रो है उनके एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको पता है। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं भी पता होगा तो चलेगा। एटॉमिक मास एटलीस्ट 1 से 20 एलिमेंट्स का ठीक है, उसके आगे का नहीं भी पता है तो मिल जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एंड क्विकली गेट मी द आंसर। नहीं अंशु, नॉट करेक्ट। ठीक है, ग्राम्स में आंसर दे देना मास का। आई हैव नॉट स्पेसिफाइड द यूनिट्स बट रिपोर्ट द आंसर इन ग्राम्स। नहीं सर, मैं वो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बोल रहा था। अच्छा अच्छा, तो एटॉमिक नंबर। हाँ, क्लोरीन का 35.5 ऑफ कोर्स। क्लोरीन का आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं अनव एंड सोहम नॉट करेक्ट। आप लोगों का आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, नहीं क्षितिज। हाँ, एक अनिकेत ने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है। एक अश्विन ने भी करेक्ट आंसर दिया है। बाकी मिहिर ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, बाकी किसी का भी करेक्ट नहीं है। नहीं, बस जिनका मैंने नाम लिया उनका करेक्ट है। रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपरली। हाँ, नाव्या ने और क्षितिज ने भी करेक्ट दिया है अभी। बाकी किसी ने नहीं दिया है। हम्म। हाँ, एक आध्या और विवान ने भी करेक्ट दे दिया है। साहिबा क्लोज इनफ बट ठीक है। आयना ने भी और कुणाल ने भी करेक्ट दिया है। श्रेयस ने भी दे दिया है। ठीक, 48.3 इज द करेक्ट आंसर। जिनका 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है उन लोगों ने केयरलेस मिस्टेक कर दिया। 48.3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे प्रोसीड करेंगे? यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उस रिएक्शन को मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? दैट 11.2 liters at NTP CO2 Cl2 गैस प्रोड्यूस होनी है। तो उसके लिए नोटिस करना कितना MnO2 रिक्वायर्ड है, ये नहीं पूछा है। ठीक है,
not the answer. In fact, जो पूछा है वो सैंपल का मास पूछा है, 90% प्योर सैंपल का. बट वो मैं एक बार बाद में टैकल करूंगा. पहले मैं एटलीस्ट ये तो निकाल लूं कि इतना MnO2 चाहिए है. ठीक है, समझ में आया? मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल पूछा है आप लोगों से, नॉट MnO2 का. ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग पहले ये टैकल कर लेते हैं. नाउ इसका वॉल्यूम दिया है, इसका मास निकालना है, तो अगेन आई वुड नॉट डू अ मास वॉल्यूम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. मैं मोल्स के टर्म्स में ही करूंगा. सो 11.2 अपॉन 22.4, दैट इज 0.5 मोल्स ऑफ Cl2 is produced. Now if you look at the coefficients, how much MnO2 will be required in terms of moles? 0.5. Right, half mole लगेगा. Right, so यहाँ पर आप कंप्यूट कर लोगे that half mole CO2 would be sorry, a half mole of MnO2. Moles of MnO2 is equal to 1/2, implies mass of MnO2 required will be half into इसका जो आप 55. molecular weight लिखोगे 55 plus 32, that is 43.5 grams. Now some students gave this as the answer. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है. This is not what is asked in the question. ठीक है, जो केयरलेस मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी is that they read the language of the question incorrectly. How much MnO2 is required वो नहीं पूछा है, how much sample is required. ठीक है, So, sir, 43.5 of x is equals to 90%. And 90% of Yes. x is 43.5. हाँ. So I will say, let me be more clear on this. Let the mass of sample be x. ठीक है, and as per the data in the question, x का 90%, ठीक है, क्योंकि sample 90% प्योर है ना, that is the mass of MnO2, right? So x into 0.9 is equal to 43.5 grams. So यहाँ से आप x निकालोगे. ठीक है, इनफैक्ट m बोल देता हूँ मैं, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में कंफ्यूज हो जाएगा अदरवाइज. सो यहाँ पर m would come out to be 48.3 grams. ठीक है, 48.33 या 48.3, right? Some students what they did was they took 43.5 का 90%, वो भी गड़बड़ हो गया. That is another careless mistake that you would have made. ठीक है, समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? सर Yes, sir. हाँ, बोलो बोलो. सर कि सर मुझे ये जानना है कि आपने बोला कि इसने MnO2 का मास नहीं पूछा है, इसने पूछा है MnO2 के सैंपल का मास. सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? अरे MnO2 का कोई सैंपल है, राइट? तो मतलब ये कोई पत्थर का टुकड़ा है जिसमें MnO2 भी है और बाकी से मिट्टी, क्ले, कुछ भी हो सकता है ना, ओके impurity सर, भी हो ठीक सकती है. ठीक है सर, ठीक है. सर जो आपने यूनिटरी मेथड किया था वो समझ में नहीं आया, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट? ये कोफिशिएंट्स हैं, राइट? ये जो 1 और 1 है ये कोफिशिएंट है. एक किसके? मोल MnO2 से 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस हो रहा है, यस सर. है ना? तो अगर मुझे हाफ मोल Cl2 प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना मोल MnO2 लगेगा? ओह ओके ओके, अंडरस्टैंड. Sir, we can also do this question by directly converting into the moles from the start by considering the mass of sample to be x. Then the mass of MnO2 will become 0.9x and we can calculate moles. बिल्कुल बिल्कुल. Sir, एक और क्वेश्चन दो ना. हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अभी अपने को इसमें. ठीक है, खूब सारा क्वेश्चंस का ही डिस्कशन होगा. ठीक है, अच्छा अब मैं एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा. ठीक है, तो वो समझना है यहाँ पर. ठीक है, विच विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गैसेस. ठीक है, तो यहाँ पे नोट करना आप.
हाँ हाँ, क्या समझ नहीं आया विभूषिता आपको? यहाँ पर मास ऑफ MnO2 तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू व्हाट इज द मास ऑफ द 90% प्योर MnO2 सैंपल दैट इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, राइट? सो यहाँ पर यू हैव अ सैंपल, ठीक है, दिस सैंपल हैज गॉट MnO2 प्लस सम इम्प्योरिटी, ठीक है, ये 90% है और ये 10% है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं किया होता तो ऐसे केस में हमें अज्यूम करना होता है दैट इट इज बाय मास, ठीक है। इसका सैंपल का मास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई स्टार्टेड विद सेइंग लेट द मास ऑफ द सैंपल बी m. नाउ m का 90% इज व्हाट इज द मास ऑफ MnO2, correct? And then Sir, I based did on not that, understand this step. huh? I did not understand this step. Sir, actually, I did it by unitary method. Like in 100% pure sample, the mass is 43.5 grams. So in 90%, how much should it be? And I was getting 39 point. 100% में 43.5 प्योर नहीं है, 43.5 होगा तो कितना और उसका सैंपल होगा मास, वो पूछ रहा है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है दैट 43.5, आपने जो ये रिलेशन ले लिया ये पिछले क्लास के क्वेश्चन में आपने इसको लाइक कन्वर्ट कर दिया, वैसा नहीं है। डेटा डेटा क्या कह रहा है यहाँ पर, दैट आपको मास ऑफ 90% प्योर MnO2 सैंपल मुझे बताना है, सैंपल का मास बताना है, Yes, sir. ठीक है। अब what I have done over here is that mass of sample को मैंने से m रख दिया, उसका 90% will be the mass of MnO2. That is what the language of the question is ना, that ये sample है, sample के अंदर MnO2 और impurity है, उसका 90% MnO2 है और 10% कुछ impurity होगा, Yes, sir. Okay, I got it. ठीक है। सो अभी जैसे परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपने देखा कैसे वो एक बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कम मिलेंगे परसेंटेज प्योरिटी के, दे विल बी समथिंग लाइक दिस एम्बेडेड इन अ लार्जर क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब नोटिस करना, नाउ फॉर गैसियस रिएक्शंस, what do I mean by gaseous reactions? That the reaction species involved are gaseous only, ठीक है। For gaseous reaction, yeah, let me kind of change the wordings. For gaseous species involved in a reaction, we can do the analysis in terms of volume. Given the volume measurements are done at constant temperature comma pressure condition. Now what do I mean by this, यहाँ पे notice करना, let me elaborate this with an example. So say you have this in front of you, a reaction N2 plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas, right? अब इस क्वेश्चन को हम लोग और इस इक्वेशन को हम लोग कैसे कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वी हैव बीन एबल टू रीड reactions like this. So if I write 1 mole of N2 combines with
3 moles of H2 to give 2 moles of NH3. Is the statement correct? Yes, sir. Yes. हाँ सर ये तो Yes, ये sir. सही लग रहा Right? That's not really a problem. Everyone is comfortable with such statements. Okay. If I write something like this, that x moles of N2 combines with 2x moles of H2 to give, or combines with 3x Good. moles of H2 to give 2x moles of NH3. Is everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है सबको 2 छोड़ दे हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट है? हाँ सर इस सबको x के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सेम आएगा ना हाँ, so I would want you to be comfortable with that idea. ठीक है, अगर इसका 1 मोल से ये 3 मोल कंज्यूम हो रहा है तो x से कितना कंज्यूम होगा आप यूनिटरी मेथड से बता सकते हो ना? हाँ 3x मोल्स कंज्यूम हो जाएगा, राइट? अच्छा, if I write this entire thing say in a different way, one molecule of N2 combines with 3 molecule of H2 to give 2 molecule of NH3. चलेगा? Yes. सर ये तो 10th वाला है है ना? That is also okay with everyone. Molecules के terms में भी I can read out this equation, right? अच्छा, something like this, ये हम लोगों ने last class में I think discuss किया था. If I write 1 gram of N2 combines with 3 gram of H2 to give 2 gram of NH3. Wrong. No, sir. Wrong, sir. सर ये नहीं चलेगा Wrong. This is wrong. हाँ सर गलत Can't do the or can't read the reaction in terms of mass. सर मास का इसे मास चाहिए इतना मोल्स को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर हाँ, क्या हो जाएगा? सर अगर इसको मास के टर्म्स में लिखना है तो मोल्स को पहले मास में कन्वर्ट करना होगा ना हाँ, ठीक है, बट एटलीस्ट जो आप सर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना, दैट दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. हाँ ठीक है, अच्छा अब सर आप एक बार बस थोड़ा हाँ हाँ एक सर आप एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं सर प्लीज जस्ट 1 मिनट ये वाला. नहीं सर इसके थोड़ा Other statement. Let me complete the statement first. ओके सर So now अब यहाँ पर नोटिस करना, if I write something like this, V liters, ठीक है, rather than this let me do this thing. V liters of N2 combined with 3V liters of H2 to give you 2V liters of ammonia. Yes. हाँ सर ये Yes, चलेगा sir. Yes, sir. Is correct. Sir, it will be correct at constant temperature and pressure. Is this statement correct? हाँ सर एकदम सही Yes, sir. हाँ. ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि मैं NTP या STP बोलूं. ठीक है, NTP STP पर तो होगा ही सही. Any temperature pressure condition which is maintained, उस पर भी ये वैलिड रहेगा. ठीक है, why is it valid? Because मैंने आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताया था. Yes. Yes. Yes, sir. Is equal to NRT. right? So if P and T are constant, then you can see that V is directly proportional to moles. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जो रेशियो में मोल्स कंबाइन या
प्रोड्यूस होंगे उसी रेशियो में वॉल्यूम भी मैं लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कोफिशिएंट्स हैं वो मुझे मोल के रेशियो के साथ साथ वॉल्यूम का रेशियो भी बता सकता है कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है. नाउ इसमें एक छोटा सा नोट, एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आप लेके चलना. ठीक है. दैट नोट और दैट क्वेश्चन वुड बी समथिंग इन दिस वे दैट this relationship that we have written above, this above discussion is only valid for gaseous species. ठीक है. जैसे for example, if I write a reaction AA gas plus BB gas is giving CC gas plus say DD solid, right? इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ. Then notice करना, writing something like this that A moles of A combines with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. This is an absolutely fine, correct statement where small a, small b, small c, small d are the coefficients. ठीक है. But if I write a statement something like this, that is say in this way that A ml of A combined with B ml of B to give C ml of C and D ml of D. तो ये क्या हो जाएगा? Wrong. Solid NML. ये गड़बड़ हो जाएगा. क्यों? Because of the fact that D is solid. ठीक है. सर तो डी सॉलिड वाला पार्ट हटा देंगे तो सही हो जाएगा. Correct. So if I let's say rewrite my statement in this way that I just talk about the gaseous species. ठीक है. A ml of A combines with B ml of B to give C ml of C at constant P comma P condition. Then this statement will be all right. Then this statement is something that I can pass. ठीक है. So ये relationship हमारा gases के लिए वर्क करेगा. तो सर एक भी सॉलिड या एक भी लिक्विड हुआ तो ये खराब हो जाएगा ना? मतलब उस सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं वैलिड रहेगा. ओके सर. ठीक है. ठीक है. ओनली वैलिड फॉर गैसियस स्पीशीज. ठीक है सर. ठीक है. So could you shift up, please? Yes, sir. Can you go to that blue statement above? ये वाला ना. Yes. Yes, sir. Just 1 minute. Sir. हाँ. Sir. हाँ बोलो बोलो. अगर if in a gaseous reaction if heat is liberated or absorbed तो फिर ये hold true करेगा कि नहीं? नहीं फिर करेगा. टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो गया ना सर? हाँ हाँ नहीं हम लोग कैसा करेंगे. सो अच्छा सबको डाउट समझ में आया? किसने पूछा डाउट? मोक्ष. हाँ मोक्ष का डाउट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर. No, sir. डाउट का ये क्या था? Yes, sir. मैं वापस रीआइटरेट कर देता हूँ. मोक्ष का डाउट था कि सर आप जब ये बोल रहे हो ना इसमें आपने यहाँ पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर का कंडीशन लगाया हुआ है. ठीक है. बट टिपिकली द रिएक्शंस दैट हैपन दे आइदर अब्सॉर्ब हीट और रिलीज हीट. ठीक है. देन हाउ इज इट दैट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आर गोइंग टू बी कांस्टेंट? तो यहाँ पर नोटिस करना. डाउट अभी समझ में आया सबको मोक्ष का? Yes, sir. सर है ना. सो अब कैसा करते हैं मोक्ष, यहाँ पे आप नोटिस करना. मान लो ये रिएक्शन वेसल है. ठीक है. एंड दिस इज एट रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. ठीक है. एंड इस वेसल की जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग रहेंगी. ठीक है.
एंड ऐसा भी मान लो कि यहाँ पर लाइक पिस्टन लगाया हुआ है ताकि अंदर बाहर प्रेशर सेम रहे और वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है ताकि अंदर बाहर टेम्परेचर भी सेम रहे। अब रिएक्शन करा दो, ठीक है। रिएक्शन कराने पर डेफिनेटली देयर विल बी सम हीट एक्सचेंज दैट विल हैपन, ठीक है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज वी लेट दैट हैपन सच दैट आफ्टर सम टाइम अगेन जो प्रोडक्ट्स हैं they are also at room temperature pressure conditions only, and then we are doing the analysis. तो फिर the system has to be open, can't be closed. नहीं, ऐसा open की जरूरत नहीं है. It is not compulsory for the system to be open. Open as in conducting होना चाहिए walls like. हाँ, जैसे energy wise open होना चाहिए. Correct. तो मैंने यहाँ पर before reaction reactants के ऊपर focus किया. They were at room temperature pressure condition, ठीक है। उनका वॉल्यूम मेजरमेंट करा और टैबुलेट कर लिया। अब रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन कराने पर ड्यूरिंग द रिएक्शन और जस्ट आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर माइट बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। बट आई लेट इट स्टे फॉर अ व्हाइल सो दैट इट acquires an equilibrium with the external conditions, ठीक है, that is the room, and again comes back to the original temperature condition. Okay, I understood, sir. Okay, and then we are doing the measurement that now what will be the volume and then doing the analysis. That is what is meant by constant temperature pressure condition. So the word constant is not really throughout applicable. It is something at the measurements. So say before reaction and after reaction. Sir. ठीक है, हाँ सर। तो इसका मतलब है कि जो अगर हम लोग को किसी इंडस्ट्रियल रिएक्शन का हम लोग को एनालिसिस करना है, वो जो 450-500 पे होते हैं, तो उसका करना है तो पहले हम लोग रिएक्शन को हमको होने देते हैं। उसके बाद सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके ठंडा करने के बाद एनालाइज करते हैं। हाँ, ओके सर, ठीक है। Sir, we can also solve this such gaseous problem by mole-mole relationship, right? दोबारा बोलो। Sir, we can, instead of going by this volume method, so we can also go by mole method, right? The one we did previously. बिल्कुल, you can. However, it will just take more time. Yes. So why is a constant temperature and pressure condition required? Because that would only affect the rate of reaction, right? No. It will also affect our volume calculations, no? So why is this called ideal gas equation? Like, does it not work for all the gases or? No. So ये जो PV is equal to nRT equation लिखा है ना, आइडियल गैस इक्वेशन जो मैंने लिखा है, इसमें we are using the fact that volume will be directly proportional to moles when pressure and temperature is constant, ठीक है। बट जब रियल गैसेस के बारे में बात होगी तो इतना सिंपल इक्वेशन नहीं रहेगा। रियल गैस इक्वेशन इज अ बिट मोर ट्रिकी, अ बिट मोर चैलेंजिंग, ठीक है। सो टू हेल्प यू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट गैसेस, वी फर्स्ट explore and study ideal gas and ideal gas equation. Once we become comfortable with that, then we talk about real gases, because real gases and their behavior isn't something which is drastically different. It is more or less a deviation from ideal equation, ठीक है। So ideal equation अगर अच्छे से solve करना आ गया तो फिर उसके deviation के ऊपर focus करके we can analyze real gases also, real behavior also. So can you like tell the difference between the ideal gas and the real gas? Abhi nahi. Okay. It will be a topic of discussion in the chapter that is going to be there, gaseous state. Okay. So no, I was thinking like in the ideal gas there might
because it's called ideal, there might not be any like intermolecular like forces between the... हम डिस्कस करेंगे ना, मैंने बताया ना, जब आइडियल गैस चैप्टर पढ़ेंगे तब, गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे तब. So what unit we have to take the temperature in? Sorry, While applying the ideal gas equation, you take temperature in Kelvin, or while applying the ideal gas equation, if you take temperature in what unit? नहीं आपको जरूरत नहीं है ना, मैंने टेम्परेचर का डेटा दिया ही नहीं यहाँ पर. This is not here in general. केल्विन में लेना होता है हमेशा. ठीक है. अच्छा, अभी हाइड्रोकार्बन का कंबशन इक्वेशन सबको लिखना आता है? हाँ सर. जनरल इक्वेशन उसका. प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव यू CO2 एंड H2O, राइट? हाँ, अभी मेनी ऑफ यू हैव करेक्टली डिटरमाइंड द आंसर दैट दिस इज C3H. इथेन. ठीक है. Propane. हाँ सॉरी. अब कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क करना होगा हम लोगों को यहाँ पर? एक तो आपको इंट्यूटिवली बाय लुकिंग एट द डेटा यू माइट हैव फिगर्ड आउट द कोएफिशिएंट्स. ठीक है, बट मैं एक बार आपको थोड़े से डिटेल्ड मैनर में ये चीज करके दिखा देता हूँ. सो आई विल स्टार्ट विद सेइंग दैट लेट द हाइड्रोकार्बन बी CXHY. ठीक है, तो इसका कंबशन इक्वेशन क्या रहेगा? CXHY plus CO2 plus O2 is going to give me CO2 and H2O. Now H2O भी यहाँ पे वेपर बोला है. ठीक है, that's why I have written over here as gas only. Now बैलेंसिंग करना मैंने आप लोगों को सिखाया था लास्ट क्लास में, सो आई होप दैट लर्निंग इज इंटैक्ट. yes sir. ये XCO2, ये Y/2 H2O एंड देन ये X plus Y/. ठीक है. अब आपको जो डेटा दिया जा रहा है क्वेश्चन का, वो कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है दैट इसका 10 ml gives 30 ml of CO2 and 40 ml of H2O, right? Using this, can we determine X and Y? Well, we can. Yes sir. So if I do volume analysis, तो वो कैसा रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करना. If I focus on the coefficients over here, so CXHY and CO2 के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? 1 mole gives X moles of CO2. मोल से X मोल CO2 मिल रहा है, right? By looking at the coefficient. Yes. 10 ml से 30 ml CO2 मिल रहा है ना? So Yes, based on this, can you determine what will be the value of X? 3. Similarly, you can again do a relationship analysis between CXHY and H2O. ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या बता रहे हैं? इसका 1 कोफिशिएंट है और इसका Y/2 कोफिशिएंट है, यानी कि 1 मोल से Y/2 मोल्स बन रहे होंगे, या फिर 1 ml से Y/2 ml H2O बन रहा होगा. ठीक है, सो 10 से अगर 40 बन रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y? 8. So you got the answer that your hydrocarbon is C3H8. ठीक है, ये तरीका समझ में आया? What we have done over here is volume analysis rather than doing mole analysis, which I have advised you to do in general, but specifically gases के cases में you need not convert those mls into moles and then do the analysis. आंसर सेम ही आएगा बट मेहनत ज्यादा हो जाएगी. आप डायरेक्टली यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो. Sir, isn't this because of the fact that any gas occupies like a same amount of volume in at a particular temperature and Yes, sir. pressure? The conversion factor is like constant. हाँ, so ये मैंने बताया ना यहाँ पर. The reason is that volume is directly proportional to moles. When pressure and temperature conditions are constant,
वॉल्यूम एंड मोल्स हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी. सो Okay, sir. जो मैं रिलेशनशिप मोल्स के साथ में बोल रहा हूँ, यू नो ए मोल्स विल कंबाइन विद बी मोल्स, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो वैसे ही मैं ए एम एल विद कंबाइन विद बी एम एल बोल सकता हूँ. ठीक है, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का. Sir, if it had been a liquid H2O, sir, then हाँ, देन भाई मैं आपके साथ में अब करता हूँ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूँ. okay, sir. ठीक है, सो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. A certain gaseous alkane, ठीक है, थोड़ी हिंट मैं दे रहा हूँ कि ये एल्केन है. सो यू नो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2. is mixed with just sufficient amount of oxygen to undergo complete combustion. Now, what is happening is, if the volume of reaction mixture reduces by 50% upon completion of reaction, then determine the alkane. Also यहाँ पे notice करना, all volume measurements are done at room temperature pressure conditions. Sir, what is you have written if the volume of dash mixture reduces by 50%? Volume of reaction mixture reduces by 50%, 50, upon completion of reaction. ठीक है, सो बहुत ही कम डेटा मैंने आपको दिया है. If it requires you to assume certain variables, go ahead, assume those variables. Maybe those variables will get cancelled out. Maybe they'll get solved for. ठीक है, but difficult question है, थोड़ा कम डेटा दिया है, and मैं आपसे expect कर रहा हूँ that you should be able to figure out at least some part of it. नहीं 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 अनिकेत, नहीं मोक्ष. एक पहला हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ. हाँ, सोहम आपका आंसर करेक्ट है. मत सर, हम लोग खुद करेंगे. सर हिंट दे दो. चलो चलो ट्राई करो. नहीं विनायक, नहीं मानव, नॉट करेक्ट. नहीं श्रेयांश, नहीं सौरदीप.
सर सब प्रोडक्ट्स गैशियस है, ये नॉट नेसेसरी। नहीं, सो यहाँ पर दैट इज द कैच, ठीक है। आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर अंडरमाइनिंग दिस, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। CnH2n+2, राइट, ये मेरा जनरल एल्केन रहेगा, Yes, sir. ठीक है। दिस विल बी कंबाइनिंग विद O2 to give you CO2 and H2O, but H2O will be liquid at room temperature pressure conditions, ठीक है। So this is something which will be a more general scenario in questions, जो कि आगे भी मैं आपके साथ में हाईलाइट करूंगा। अब ट्राई करो। अब आई थिंक आप लोगों में से आप में से काफी लोगों ने अपनी मिस्टेक रियलाइज करी होगी। Also, just a doubt. So we won't be considering the volume of water as part of the volume of the product. नहीं, सो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। दैट इज समथिंग विच यू कैन highlight as an important learning from this question only. Volume of liquids and solids is negligible as compared to gases. Can be neglected as compared to gases. और अगर आपको खुद को ये टेस्ट भी करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक हिंट देके समझा देता हूँ, जस्ट एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। से मीथेन प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, है ना। ये एक एग्जांपल दिया। अब मान लो मैं मोल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो इसका एक मोल O2 के 2 मोल के साथ में कंबाइन करेगा टू गिव यू 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल और सॉरी 2 मोल्स ऑफ H2O, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Ask you to look at their volume, ठीक है। से वॉल्यूम एट NTP कंडीशंस, इफ आई आस्क यू टू लुक एट देयर वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ये कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, राइट। व्हाट अबाउट H2O? 36 ml। H2O तो लिक्विड है ना, तो इसके ऊपर मैं 22.4 वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। इसके लिए आई विल व्हाट डू इज मोल से मास निकालूंगा, डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा। तो कैन यू सी आई एम गेटिंग 36 ml एज द वॉल्यूम। Yes. Yes. हाँ सर, बहुत छोटा है तो सर। 36 ml with respect to these other volumes of gases. Yes, sir, negligible. ठीक है। So that is a learning from this question which you should adopt and then come up with the answer. हाँ, आई थिंक काफी सारे बच्चे अभी आ गए हैं करेक्ट आंसर लेकर। गुड। मैं चैट पे लिख देता हूँ आंसर। ये तो एक ही पर्सन को चला गया। ठीक है, कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को? जिसको नहीं आया है वो अब यहाँ पर फोकस करना, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन।
So there are couple of important learnings. मैं यहाँ पे highlight कर देता हूँ. This is, you can say, the first learning, that you should be able to write an equation and a balanced equation. ठीक है, मैं यहाँ पर ये NCO2 N+1 H2O and 3n+1/2 O2. ठीक है, I hope this is something which is an important learning that everyone is now able to do. You should be able to write a balanced equation. The second learning that you have from this question is the fact that solids and liquids ka volume can be neglected. And why we are bothered about it? Because the entire question ka data is in terms of volume only. अच्छा, अब next observe करना, I should say that is the next hint, or that is something which is an important learning. By looking at the question, you realize that काफी कम डेटा दिया हुआ है, हार्डली कुछ बताया गया है कि कितना एल्केन है, कितना O2 है. बस इतना बोल दिया कि एल्केन O2 को मिलाया, कंबशन करा और वॉल्यूम 50% से रिड्यूस हो गई. Right? So in the dearth of such information, right, don't hesitate to take variables. That will be an important learning. ठीक है? Don't hesitate to take variables. ठीक है, हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, हो सकता है कैंसल आउट हो जाए. So I'll start by saying that let the volume of alkane be V liters. ठीक है, या V मिलीलीटर्स, जो भी आपकी इच्छा है. ठीक है, ml में लेना है तो ml में ले लो, I don't mind. V ml में ले लो. Now let me proceed with the analysis in terms of this variable only. Okay, so you have Cn H2n+2 plus 3n+1/2 O2 is giving NCO2 and n+1 H2O liquid. ठीक है, so ये फॉर्मेट अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है, so that will be like you can say a fourth important learning. ठीक है, ये फॉर्मेट को नोटिस करना. स्टार्ट में, ठीक है, what is it that we are going to have? We are having V ml of alkane. There is no CO2, no H2O because हम लोग स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ये जो फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस है ये मैं काफी जगह यूज करूंगा. How much O2 will be required? Can you give me an answer? Sir, 3n+1 by 2 into V. 5 more. ठीक है, आप लोगों को अब इतना एनालिसिस करना आता है ना. Like if you will notice the coefficients, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3n+1/2 है. ठीक है, so 1 and 3n+1/2, राइट, ये इनके कोफिशिएंट्स है. एल्केन एंड O2 के. तो VML से कितना O2 कंज्यूम होगा वो आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो. So you will come up with the answer saying that this should be equal to 3n+1/2 times VML. ठीक है. Now what will happen in the end? ये रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे. Yes. ठीक है, वहां पे मैंने डैश डैश लगा दिया, लाइक कंज्यूम हो गए कंप्लीटली. कैन यू
compute how much of O2, or sorry, how much of CO2 will be produced? VNML. 50% of the volume. Like you can again look at the data na, of the coefficients. NVML. Can you see that alkane और CO2 का बीच का relationship कैसा है? इसका coefficient 1 है और इसका coefficient n है. तो can you say कि V से कितना CO2 produce होगा? VN. VNN क्या NVML है कि नहीं? हाँ सर. Yes. What about H2O? उसका नेग्लेक्ट कर देंगे सर. हाँ, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देना. ठीक है, डोंट डू द एनालिसिस बिकॉज इट्स लिक्विड. ठीक है, इसका वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर देना. ठीक है, तो ये आपने वेरिएबल के टर्म्स में एनालिसिस कंप्लीट करा अपना. Yes. ठीक है, फॉर्मेट समझ में आया स्टार्ट एंड एंड वाला? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं आपको पूछूं दैट लेट्स नाउ लुक बैक एट द क्वेश्चन and use that data in the question. If the volume of reaction mixture reduces by 50%, so would that give us some equation to work with? Yes. हाँ सर, NV को 2 से मल्टीप्लाई कर देना. So if you will notice, this is the volume before the reaction, है ना? ये आपका वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन है एंड ये आपका वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन है कि नहीं? Yes, sir. Yes. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द क्वेश्चन दिस वॉल्यूम आफ्टर इज 50% ऑफ वॉल्यूम इनिशियल. Yes, sir. Volume after is 50% of volume before the reaction. So ये after reaction कितना है? NV. And before reaction कितना था? V plus 3n plus 1/2 into V. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें अब आप नोटिस करोगे कि V कैंसिल आउट हो गया और आप सॉल्व करोगे तो आपका n का वैल्यू 3 आ जाएगा. हाँ सर, मैं पहले ही देख के मतलब स्टार्टिंग में समझ जाता है कि V कैंसिल होने वाला है, तो मैंने 1 प्लस 3n प्लस 1/2 को 2n लेकर सॉल्व किया. हाँ हाँ, मतलब आप डेफिनेटली वेरिएबल लेने की जगह वैल्यू भी ले सकते थे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन sir. में कोई ऐसा डेटा दिया हुआ नहीं है, हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ है अबाउट द वॉल्यूम्स. तो आप रादर देन सेइंग लेट द वॉल्यूम बी VML, ठीक है, यहाँ पर यू कुड हैव वेरी वेल सेड दैट लेट मी टेक द वॉल्यूम टू बी 100 ml, ठीक है, या 1 ml, जो भी आपकी मर्जी है. Yes, sir. 1. ठीक है, आप ले सकते हो, आई डोंट माइंड. ठीक है, हाँ हाँ बोलो. I did it like I did CnH2n plus 2 plus the coefficient of O2 to be as 1 plus 3n plus 1 upon n, and for that the coefficient of carbon dioxide will be n, and then the volume. एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, दोबारा बोलो. So I did like CnH2n plus 2 coefficient plus oxygen का coefficient is 1 plus 3n plus 1 upon n, and अपॉन n कैसे आ गया? अपॉन 2 आएगा ना? Yes, sorry, so upon 2, and for that the coefficient of carbon dioxide is n. So if the volume of the first reactant is 100, then the volume of the carbon dioxide will be 50, and then I did the cross multiplication. हाँ, that will be the faster way, which strikes with more and more maturity. Like what Anushri is trying to say is that इसका coefficient 1 है और इसका coefficient 3n plus 1 upon 2 है.
राइट? इसका 50% शुड बी इक्वल टू n, एंड यहां से n सॉल्व कर लिया फटाफट। यही कहना चाह रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है, बिल्कुल। नाउ आई वुड नॉट स्टार्ट बाय डूइंग दिस मेथड, बिकॉज अगर मैं ऐसे करूंगा तो 90% बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, स्पेशली दोज हु हैव नॉट डन मोल कंसेप्ट बिफोर, ठीक है। सो आई वुड नीड टू टेक अ मोर इलैबोरेट एंड बेसिक अप्रोच, at least in the start, and of course then these faster methods will evolve as we keep on practicing more and more questions, ठीक है? ये समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. ठीक, ऑलराइट। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बट थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में, ठीक है। गैसेस के ऊपर ऐसे और भी क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज रिएक्शंस, ठीक है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड थ्रू एन एग्जांपल आप लोगों को सबको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, कैसे करना रहेगा। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल। A plus 2B is giving 3C plus 4D. Then D gives 2E and E plus F is say giving 2G. Okay, and my question to you is that how many moles of A are required to produce 1 mole of G? हाँ, राइट अनिकेत, राइट आद्या, राइट गौरव। हाँ, नहीं रीसा, अनुश्री आपका करेक्ट नहीं है। सर कैन वी ट्राई? हाँ करो ना, बिल्कुल, मना कहाँ करा मैंने। Sir, in the second equation, D is the only reactant. हाँ, D से E प्रोड्यूस हो जा रहा है। Sir, wait some time. So are you still verifying answers in the chat? Or? हाँ, मैं चैट पे करेक्ट आंसर लिख देता हूँ। जिसका नहीं आया है वो लोग फिगर आउट करो कहाँ पे गड़बड़ हुई है। Yes, sir. ठीक है, अब कैसे प्रोसीड करना है विद सच क्वेश्चंस, नोटिस करना। इसमें जो एक केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी है, ठीक है, वो मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा यहाँ पर। Now, the way in which you can do this question is that you can either go from start to end or you can go from end to start. ठीक है, multiple ways हैं in which you can approach. ठीक है, let me go from start to end. ठीक है, let me adopt that approach.
ठीक है, मैं A से स्टार्ट होऊंगा एंड G पे जाऊंगा. You could have also done this thing that you could have started from G and then went back to A. Yes. Okay. So let me do it in a start to end kind of an approach. Now, let the moles of A required be X. Let me start with that. Let moles of A be X. Now, if I notice the first reaction is A plus 2B is giving 3C plus 4D. Now, इसके X moles हैं, तो how much D should be produced? ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये स्टार्ट है. ठीक है, लेट मी एक्चुअली फॉलो द फॉर्मेट विच आई हैव बीन यूजिंग. स्टार्ट में A के X मोल्स है, D तो कुछ भी नहीं है. एंड में क्या हो जाएगा, A कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो D के कितने मोल्स बन जाएंगे? 4x. The answer would be 4x. 4x. कैसे आपने ये आंसर कंप्यूट करा? बेस्ड ऑन द यूनिटरी मेथड कोएफिशिएंट्स, है ना? So you would have computed that this is 4x. ठीक है, ध्यान से अब सुनना है यहाँ पर. Coefficients are used for analysis within a reaction. ठीक है, एक रिएक्शन के अंदर एनालिसिस करने के लिए कोएफिशिएंट्स यूज होंगे. And why am I highlighting it? Because now when I'm going to work on the second reaction, don't relate the coefficients. ठीक है, ये अब मैं D से 2E बनाने जा रहा हूँ, that is the second reaction, है ना? तो जो D के मोल्स रहेंगे स्टार्टिंग में, वो as it is, ठीक है, जो 4x मोल्स निकाले आपने, वो as it is यूज कर लेना. ठीक है, don't make any use of coefficients between reactions. ठीक है, ऐसा मत करना कि सर यहाँ पे तो 4D है और यहाँ पे D है, तो यहाँ पर मैं X मोल्स लिख दूं. ऐसा नहीं करना. Just write over here that D के 4x moles हैं in the second reaction, right? So the advice or the important aspect for many students to avoid over here is don't use coefficient between reactions. Between reactions कोई लेना देना नहीं होता coefficients का. Is this clear? Yes, sir. Yes. So यहाँ पर what will happen in the end? How much E will be produced? 8x. 8x. तो यहाँ पर आप लोग अब कोएफिशिएंट्स का यूज कर सकते हो विद इन द रिएक्शन. D से E, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो यू कैन वेरी वेल से दैट 4x से ये 8x मोल्स बनेंगे. ठीक है, अब आप थर्ड रिएक्शन पे आ रहे हो, लाइक सीरीज रिएक्शन हो रही है एक के बाद एक, तो वापस से जस्ट यूज E के मोल्स एज इट इज. E plus F is giving 2G, राइट? सो ये E plus F is giving 2G हो रहा है, तो यहाँ पर ये 8 मोल्स जो है वो एज इट इज यहाँ पर यूज कर लो. ठीक है, डोंट प्ले अराउंड विद कोएफिशिएंट्स ओवर हियर. ठीक है, सो स्टार्ट में you will have 8x moles of E. In the end, E will get completely consumed. How much G will be produced? 16. 16. Right? You can use the coefficient. इसका coefficient 1 है, इसका coefficient 2 है, right? So ये 8x से कितना बनेगा ये आप बता सकते हो easily, 16x moles. ठीक है? So now you can say 16x is equal to 1 implies x is equal to 1 by 16. That is your answer. Sir, I did that mistake, sir, but I got the same answer.
means मैं I took, लड्डू दूं तुम्हें, Sir, like should I send across some gifts? no sir. बात है सर बहुत अच्छी. No sir, I'm just saying sir that I took 1 mole of tea. Then you can say how much means 1 mole gives 2 E. So 4 moles will give 8 E. So what's wrong with that? I'm not able to You said understand. 1 mole of A gives No sir, 1 mole of D 1 mole of D. gives 2 moles of E. हाँ So 4 moles of D will give 8 moles of E. So हाँ, तो ठीक है ना. विद इन द रिएक्शन आप एनालिसिस कर रहे हो कोफिशिएंट्स यूज करके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना. so then I didn't understand then what does that Sir between told us that whatever the number of moles that we get in the first step, because it's a series, the same we have to use in the next reaction as well. So like you took it as 1 and 1, and then again in the middle you used another unitary method, and then you got 8. Like you cross multiplied in the second reaction. Okay. sir, हाँ. Sir, I developed an understanding to this question. I don't know if it's similar, but I've typed it in the chat. Can you just check it? क्या लिखा है तुमने? Sir, I've written कि reaction को देख के 1 mole of A for 4 moles of D. So 0.25 moles of A for 1 mole of D. Then 0.125 moles of A for 1 mole of E. And so on. And finally for 1 mole of G, I get 0.125 upon 2 moles of A. That is 1 by 16. Exactly, वही तो हमने करा है. अच्छा, same thing, no? Same thing. Okay. It's just that I am being a lot elaborate. ठीक है, I can't afford to be like fast right now. मतलब otherwise this is a question which I would expect you to do हवा में. ठीक है, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यस सर. Yes, सर. पेन छूने वाले को कौवा काटता है. वही सर. नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए पेन जरूर चलाना चाहिए. ठीक है, बट ये क्वेश्चन इतना इजी है कि इसमें मुझे लाइक मेंटली भी मैं कर सकता हूँ. ठीक है, बट आई एम शोइंग दिस बिकॉज ऑफ अ रीजन. One, I want to be crystal clear to each and every student, and the second thing is that I want this to be avoided. Many students make this mistake. Okay, and this is something especially in the context of जब मैं actual reaction लिख के दे देता हूँ. ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बट एक ये थॉट रहता है दिमाग में. चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ. ठीक है, ट्राई करना. जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो एंड देन लेट्स डिस्कस. ओके, शुरू हो जाओ. सर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, आप लोगों को हाँ, आई थिंक ये KClO3. रुक जाओ, मैं रिएक्शन बता देता हूँ. इस वाले ये दिस इजंट अ कॉमन रिएक्शन. इट इजंट समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि पता होगा. सो मैं रिएक्शंस आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज्ड. ठीक है, तो KClO3 को जब थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो KCl एंड O2 बनता है. दैट इज द रिएक्शन. एंड देन बोला जा रहा है एक्सेस एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन दैट गैसियस प्रोडक्ट. ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये एक्चुअली गैस होता है. तो ये बैलेंस. सो एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन दैट गैसियस प्रोडक्ट टू गिव यू एल्यूमिनियम का ऑक्साइड. ठीक है, these are the two reactions that are going to happen. सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? अनन्या, आपका आंसर करेक्ट है. बाकी आदर्श का करेक्ट है, क्षितिज का करेक्ट है,
अनिर्वन, अनव, केशव, विवान का करेक्ट है। सौरदीप, सोहम, कामाक्षी, आद्या, अनिकेत का करेक्ट है। देवम का करेक्ट है। बाकी लोगों का गड़बड़ था। ठीक है, हाँ शर्विन आपका भी करेक्ट है। अभी खूब सारे मैसेज हो गए, आई कांट स्क्रॉल थ्रू देम अ लॉट। मैं चैट पे लिख के भेज देता हूँ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे? सर 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now A option is the correct answer. ठीक है, 1 mole. So इसमें how do we proceed? यहाँ पर आप नोटिस करना, सबसे पहले तो बैलेंस करना होगा इक्वेशंस को। Yes, sir. मैंने बैलेंस नहीं करा है, आप लोगों को खुद को बैलेंस कर लेना चाहिए। सो ये पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है 1 मोल ऑफ KClO3। सो 1 मोल ऑफ KClO3 से कितना मोल्स ऑफ CO2 बन जा रहा है? 1.5. 1.5 मोल, 3/2 मोल्स बन जाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट रिएक्शन में अल्यूमिनियम प्लस O2 is going to give you Al2O3 and if you balance it out, ये 2 ये 3/2, ठीक है। सो एज इट इज ये 3/2 मोल्स यहाँ पे उठा के रख देना। तो इससे कितना Al2O3 फॉर्म? 1 mole. राइट, सो इफ यू लुक एट द कोएफिशिएंट्स, 3/2 से 1 फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी आल्सो ओवर हियर। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा that 1 mole of Al2O3 is getting formed। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, मैंने जो रिएक्शंस यहाँ पे दिए थे आपको बैलेंस नहीं करके दिए थे, आपको बैलेंस करना चाहिए था। ऑलराइट, सो ये सीरीज रिएक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अब नोटिस करना, लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ, अरे 9:30 बज गया ऑलरेडी। सर एक और क्वेश्चन। हाँ सर, एक और क्वेश्चन, फिर हम लोग जीकेएम सर को बोल देंगे कि केमिस्ट्री बोलेंगे 10 मिनट चल लो और हम लोग बोलेंगे 20 मिनट लेने के लिए। नहीं सर, नहीं मानते तो नहीं है। नहीं रुक जाओ यार, केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट तो मुझे लाइक टाइम लगेगा। मजाक ही कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, चलो आप लोग आज के लिए यहीं तक होल्ड कर लो, मैं आपको केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, बेसिक एनालिसिस आपको आई थिंक समझ में आया। इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजता हूँ। यस सर, ट्राई दोस क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी कल का सेशन जो है वी हैव अ डाउट सेशन, उसमें आप अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी बचे हुए डाउट्स हैं, पेंडिंग डाउट्स हैं, प्लीज क्लोज कर लेना सो दैट सर अब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर गुड पोजीशन फॉर द टेस्ट कमिंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, मंडे को है, मैंने ग्रुप पे डाला था आप लोगों को। यार शाम को 6 बजे है ना टेस्ट? हाँ, शाम को 6 बजे रहेगा, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा एंड ऑनलाइन मोड में रहेगा। मैंने आप लोगों को एक आइडिया भी दे दिया कितने क्वेश्चंस रहेंगे। सो अकॉर्डिंगली एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डी ब्रॉगली और उसके आगे का रहेगा। ठीक है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड आगे का पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके पहले का कुछ नहीं। सर मतलब बोस मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं आएगा? नहीं, मतलब तो पीछे का यूज होगा कि कुछ भी नहीं होगा? इट कैन कम एज समथिंग इनडायरेक्ट,
ठीक है, but mostly अरे सर तो क्या फायदा फिर? Mostly the questions will be focused upon the सर ऐसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लेते ना. Sir, could you send sir, a वो difficult नीचे दुकान assignment sheet on the last part of assignment, like a similar sir. sheet to assignment 3? हाँ मैं भेजूंगा ना, अभी रुक जाओ, let me first get done with this quiz. Sir, so the quantum mechanic model won't come. क्या बोल रहे हो? Sir, हाँ, the questions in which more than one options are correct, will they be marked separately or beach में will be Can you missed? just tell the how is the partial marking thing done? Like if like out of 4 there are 3 multiple correct, and if 2 are marked, then how is the distribution? You will get partial marks for each option that is correct. You will get 1 mark. But So if 3 are correct and we mark 2 of the correct ones, then we'll get more marks than if we mark 1 of the correct ones, right? नहीं ऐसा नहीं होता. जैसे Sir, suppose तीन एक क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर A, B and C है. ठीक है, दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज. ठीक है, अब मान लो किसी ने सिर्फ A मार्क करा तो उसको मिलेगा +1 मार्क. ठीक है, किसी ने A एंड B मार्क करा तो उसको मिलेगा +2 मार्क. किसी ने A, B एंड C मार्क करा तो उसको मिल जाएगा पूरा +4 ऑफ द क्वेश्चन. जितना टोटल मार्क्स का क्वेश्चन था +4 का रहेगा, वो मिल जाएगा. किसी ने अगर इसके अलावा लाइक गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, से फॉर एग्जांपल आपने A के साथ में D मार्क कर दिया, देन यू विल सिंपली गेट नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, सर तो मैं सही मार्क करा था तो उसका और फिर गलत मार्क करा उसका नेगेटिव मिला के 0, वैसा नहीं होगा. सर एनी इनकरेक्ट चॉइस मार्क मींस यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स. सर तो मतलब हमेशा सर तो मैंने अगर ABCD चारों मार्क कर दिया तो एक करके पहले. हाँ सर तुम बोलो. मैं बोलता हूँ सर, अगर मैंने ABCD चारों मार्क कर दिया तो ABC +3 और D का -1 तो 2 नहीं मिलेगा. ABCD चारों मार्क कर दिया तो ये मिलेगा तुमको. अगर तुम ABCD मार्क कर दोगे ना, ये मिलेगा. अरे सर ठीक है, अगर ऐसे ही प्लस मिल रहा होता तो हर क्वेश्चन में करके आ जाए ABCD. हाँ सर, सारे ने ABCD कर दो, कोई तो होगा सही. so you have to be very cautious. Mark only that option which you are going to be confident about. ठीक है, don't take unnecessary risk. आते हुए मार्क्स भी चले जाएंगे otherwise. Can you please repeat the portion for the TWT? डी ब्रॉगली और उसके आगे का. सर फिर उसके पीछे का पोर्शन के लिए अलग TWT होगा क्या? नहीं, उसके लिए फिर लाइक बाद में कंबाइंड TWTs होते जाएंगे, लाइक ऑल इंक्लूसिव. So we got the schedule for that. You got the? We got the schedule for the combined TWT. अच्छा वो भी मिल गया. Sir, is lecture over? हाँ lecture is done. So what are Thank the you, sir. timings for the course? What are what? Timing. टाइमिंग 6 से 7 होना चाहिए शाम को. Okay, sir. So the answers in which more than one option is correct will be mixed along with the single option correct, or separately there will be a section for it? अलग सेक्शन रहता है. Okay. Thank you, sir. So the quiz will be in Panisha or Google Forms? नहीं पनीशा पे ही होना चाहिए. So there will be numerical and theory. कुछ प्लेटफॉर्म ट्राई कर रहे हैं. आप लोगों ने जो पिछला टेस्ट दिया था वो पनीशा पे दिया था, मैथ्स वाला. हाँ सर. हाँ तो वैसे ही होगा. ठीक है. Sir, will there be integer type? अरे तुम मतलब थोड़ा सुबह कुछ फर्मेंटेड खा पी के आ जाते हो क्या? नहीं बोल रहे. मतलब ये वो शर्विन जैसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार तुम, जो मैंने स्पेसिफाई करा है. फर्मेंटेड खा. चलो ठीक है देन. थैंक यू सर. यस बाय सर. Thank you, sir. कल नेक्स्ट आना, अपने डाउट्स जो भी हैं डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे. चलो ऑल राइट.